معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اجلت میں بلائی گئی پریس کانفرنس میں ہم اراکین رابطہ کمیٹی اور اراکین اسمبلی آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس ہمارے PS 101 سے ہمارے حق پرست MP جمال احمد بھائی پر قاتلانہ حملے کے سلسلے میں بلائی گئی ہے کہ آج صبح کتنے بجے واقع پونے 3 بجے آج دوپہر 2:45 بجے جمال احمد بھائی جبکہ اپنے گھر پر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، اس وقت ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اس کی ابھی ہم آپ کو CCTV کیمرے پر جو ویڈیو ہے وہ ابھی ہم اپنے آپ ساتھی دوستوں کو دکھا بھی دیں گے۔ تو یہ ان کے گھر اس وقت ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بالکل ساتھ ہی پولیس چوکی تھی اور جو قاتل تھے وہ اتنے نڈر تھے یا انہیں اتنا یقین تھا کہ اس کے باوجود بھی ان کی اور اس وقت ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے، لیکن بس جمال احمد بھائی کی یہ خوش قسمتی تھی کہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، انہوں نے گاڑی اسٹارٹ کر لی تھی اور یہ روانہ ہو گئے اور اسی لیے ان کو تو اپنا اس میں نہیں نقصان ہوا، لیکن ان کا جو اپنا پولیس مین تھا اس کے اور حملہ آور کے درمیان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہم بار بار صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی اس جانب توجہ دلا چکے ہیں۔ ہمارے 3 MPs جس میں ساجد قریشی بھائی، رضا حیدر بھائی اور منظر امام بھائی، 3 ہمارے MPA شہید ہو چکے ہیں۔ ایک MNA رشید گوڈیل بھائی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور شدید زخمی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی۔ اس کے علاوہ MQM کے متعدد کارکنان ان قاتلانہ حملوں میں شہید ہو چکے ہیں اور مسلسل MQM کے کارکنوں کو اور خصوصی طور پر عوامی نمائندوں کو، MPAs کو اور MNAs کو تھریٹ ہے اور ان کو خطرہ ہے اور مختلف جگہوں سے مختلف موقعوں پر ان کو چیز کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں متعدد مرتبہ بتائی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کی سیکورٹی کا کوئی اطمینان بخش بندوبست نہیں کیا گیا ہے، جبکہ حکومت نے بہت سارے ایسے ارریلیونٹ لوگوں کو جو عوامی نمائندے بھی نہیں ہیں اور جنہیں کسی قسم کا تھریٹ بھی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو بھی سیکورٹی دی ہوئی ہے، سیکورٹی کے نام پر پروٹوکول دیا ہوا ہے اور جن کے ساتھ ایک نہیں بلکہ کئی پولیس موبائلیں چل رہی ہیں۔ ہم اس بات کا بار بار مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی تک حکومت نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ گیا ہے کہ اس کے اوپر ہم احتجاج کریں اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ جب یہ مسئلہ عدالت میں جائے گا تو پھر وہ تمام فہرستیں سامنے آئیں گی، ان تمام اشخاص کا نام سامنے آئے گا جن کو ضرورت نہیں ہے پروٹوکول کے لیے سیکورٹی کے نام پر ایک نہیں کئی موبائلیں دی ہوئی ہیں۔ پھر یہ مسئلہ بھی پھر عدالت کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس کے اوپر بھی عدالت کی گائیڈ لائن آئے گی۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل معاملات ہیں، یہ انتظامی معاملات ہیں، یہ ایگزیکٹو معاملات ہیں، یہ گورنمنٹ خود ہی کرے، لیکن چونکہ اب یہ اتنے زیادہ واقعات ہو گئے ہیں، ہم گورنمنٹ کو آخری مرتبہ یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہمارے عوامی نمائندے، ہمارے MPAs، ہمارے MNAs، ہمارے سینیٹرز اور دیگر پارٹی کے ذمہ دار ہیں، ان کو پراپر سیکورٹی فراہم کی جائے، ورنہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم عدالت کا راستہ کھٹکھٹائیں گے اور پھر تمام دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ ہزاروں پولیس کے اہلکار جو ہے
किन किन के घरों की सिक्योरिटी में कितने कितने लोग तैनात हैं। मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए जमाल अहमद भाई से कहता हूँ कि जमाल अहमद भाई आपको मज़ीद तफसील से आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम सहाफ़ी को, कैमरा मैनों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसे कि राब्ता कमेटी के रुकन कमर नवेद भाई ने आपको तफसीली बताई, वाक़या इस तरह का है कि मेरी रिहाइश शादमान नंबर 1 में है, कब्रिस्तान के जस्ट अपोजिट सामने है। और मैं एक प्रोग्राम में रेहान हाशिमी भाई के साथ एक विजिट पे जा रहा था और मैं गाड़ी में बैठ चुका था, ड्राइवर भी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और मेरा गनमैन मेरे घर के सामने बिल्कुल चौकी है, उस पर गनमैन था, वो गेट बंद करके आ रहा था। इन्हीं दरमियान में मेरे गेट के पास आके मेरे दरवाजे के साथ जो कार थी उसके साथ एक मोटरसाइकिल पर रुका, जो बगैर हेलमेट बगैर कैप के था, ग्रीन कलर का शलवार कमीज में मलबूस था और उसने टीटी निकाली। अब बहरहाल टीटी निकाली तो मैंने कुल वल्लाह पढ़ लिया था, मैंने अल्लाह खैर करे क्या होगा पता नहीं। मैंने पीछे देखा मेरा गनमैन किस पोजीशन में है, तो गनमैन जब बाहर निकला तो इसकी आंख उस देखा उसने कि गनमैन इस पुलिस चौकी पे है, तो इसने उधर फायर किया। तो इतनी देर में गाड़ी स्टार्ट दी तो मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी भगाओ इसको। हम भगाने में कामयाब हुए। जब हम आगे की तरफ गए तकरीबन आधा किलोमीटर में तय किया तो ये फिर हमारे पीछे आया लड़का और दिल्ली साहब मेरी गाड़ी के आगे रोकने की कोशिश की। मैंने इससे कहा ड्राइवर को, मैंने कहा जितना इसको दबा सकते उसको दबाओ, हिट करो। उसने हिट किया तो वो उछलते हुए दूसरी साइड पे जाके गिरा और मोटरसाइकिल उसने छोड़ी और वहां से वो फरार हुआ, जबकि मेरा गनमैन पैदल भागते हुए उसका पीछा किया और वहां से निकलते हुए सखेसन कब्रिस्तान में घुसा और गनमैन वहां तक गया, बेचारा वो जख्मी भी हो गया, कब्रिस्तान पे गिरा वो। और उसके बाद उसने कब्रिस्तान के अंदर से आमद रफ्त का रास्ता है, वहाँ पे गाड़ियाँ जाती आती हैं, उसके अंदर से एक राहगीर से मोटरसाइकिल छीनी और उसके बाद वो रवाना हो गया। मेरा कहने का मकसद ये कि वाक़यात कई हो चुके हैं, 3 MPA की शहादत हो चुकी है। हमारे मसरे के मेयर कराची वसीम अख्तर भाई को भी थ्रेड है, हमारे मसरे के फारूक सत्तार भाई MQM पाकिस्तान के सरबराह उनको थ्रेड है, उस तरह की सिक्योरिटी नहीं मिल रही। रेहान हाशिमी भाई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, जो MNA थे उनके साथ भी थ्रेड है। कई दफ़ा इनको हमने लेटर भी लिखे, कोई इसका असबाब नहीं हुआ इसका। और कितने ऐसे लोग हैं जो पुलिस की सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, उनके रिश्तेदार जो कारिब घूम रहे हैं। मैं कहता हूं कि देखने का मकाम है। और मैं रेंजर्स के एहलकार, DSR, कर्नल तलहा साहब, पुलिस एहलकार, SP, DSP, SHOs का शुक्रगुजार हूँ कि बर वक्त मेरे घर के पास पहुंचे और वो पेशरफ की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह कार्रवाई करके उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मेरा मीडिया से गुजारिश ये है कि ये वाक़या मेरे साथ दूसरा हुआ है और कई हमारे MNA MP के साथ हो चुका है। अल्लाह के वास्ते हमें सिक्योरिटी फराहम किया जाए। ये हमला मेरे पर नहीं हुआ है, MQM पाकिस्तान पे हुआ है, तो लिहाजा इसको बारीक बीनी से देखा जाए और इसको सद्भाव किया जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। और रमज़ान का सिलसिला चल रहा है, स्नेचिंग भी हो रही है, डकैती भी हो रही है। और मजे की बात है कि जो वो लूट रहा था, जो मारने आया था या मुझे लूटने आया था, दोनों सूरतों में उसको इतना डर खौफ नहीं था कि पुलिस चौकी यानी सेकंड के फासले पे आमने सामने, उसको डर खौफ नहीं था और इतने मतलब दिलेरी से काम कर रहा था। मैं उसको देखता हूँ कि सोचता हूँ कि पता नहीं इसने क्या सोच के आया था, किसका हाथ था, किसने इसको भेजा था। इसी दिलेरी से मैंने आज तक इस तरह काम करते हुए देखा। उसके बाद भी मेरी गाड़ी के पीछे जाता रहा। बहरहाल मारने वाले से बचाने की जात है और मेरी आवाम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे फोन कॉल्स की, आवाम की दुआएं हैं। MQM राब्ता कमेटी ने मुझे फोन किया, MP MNA पहुंचे, आमिर खान राब्ता कमेटी को मेरे घर पे पहुंचे। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं, खासतौर पर मीडिया का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इतना टाइम दिया और वहां पे आए। बस ये दुआ है कि आप लोग से कि कोशिश करें कि तमाम लोग जो इस तरह के वाकयात में लोग पकड़े जाएं। खासतौर पर शहीद MPS साजिद कुरैशी भाई, इनका बेटा भी शहीद कर दिया गया था, इंजीनियर था। ये तमाम लोगों के मसले के वो टारगेट लेकर पकड़े नहीं गए। हमारे साथी भी शहीद हुए, उनके टारगेट नहीं पकड़े गए। लिहाजा इसको फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया। तमाम तफसील आपको जमाल अहमद भाई ने गुज़ार की। इस हालिया ऑपरेशन के अंदर हमारे हज़ारों कारकुनान झूठे मुकदमात, फर्जी कत्ल के, इल्ज़ाम कत्ल के मुकदमात में पकड़े गए, जिसमें कोई गवाह नहीं था, कोई शहादत नहीं थी, यहाँ तक कि FIR में नाम भी नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से और अफसोस से 1986 से लेकर आज तक MQM के हज़ारों कारकुनों को कत्ल किया गया। MQM के जो अपना और इसके अलावा कराची शहर के हज़ारों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया। लेकिन अफसोस यह है कि MQM के 3 MPAs और 1 MNA पर जिन लोगों ने कातलाना हमला किया, उन
समेत इनमें से अक्सरियत लोगों के कातिलों को नहीं पकड़ा जा सका। मैं पुलिस से, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों से और अफसरान से ये कहता हूँ कि हम MQM की नज़रें, MQM की MPA MNA की नज़रें भी इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि काश हमारे अवामी नुमाइंदों और हमारे बेगुनाह कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और कैफर किरदार तक पहुँचा जाए। और कराची में गुज़िश्ता अरसे में छीना झपटी दोबारा से उरूज पर है। लोगों को के मोबाइल छीने जा रहे हैं, लोगों को गाड़ियों से महरूम किया जा रहा है, लोगों के घरों में डाके डाले जा रहे हैं, दुकानों में डाके डाले जा रहे हैं। तो इस पुलिस से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से और रेंजर से हमारा मुतालबा यही है कि इन जराइम पेशा लोगों को, इन कातिलों को, इनको कंट्रोल किया जाए और इनको गिरफ्तार करके शहरियों को और अवामी नुमाइंदों को अमन, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। शुक्रिया। ये अभी उसको नहीं, इनको यहाँ दिखा देते ना जी, शेयर कर देंगे। ये आप इनको अपना शबीर भाई को उसका CCTV फुटेज भेज दिया गया है। ये तमाम मीडिया के चैनल से शेयर कर लेंगे। लैपटॉप में दिखाने में परेशानी हो रही है, लेकिन आप मोबाइल पर अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। देखें, अभी SHO उस पर देखिए अभी SHO आया था, उस पर कार्रवाई कर रहा है। FIR इंदराज होगा, इंशाल्लाह इसको कराएंगे। और हम चाहते हैं कि इंदराज हो और कानून के मुताबिक कानून के कटहरे में आए, तो इंशाल्लाह इसको भी इंदराज कराएंगे। समझना, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस के इदारे नहीं हैं, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं हैं। इसको सॉर्ट आउट करना पुलिस का और दीगर कानून नाफिज करने वालों के इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इसको डिटेक्ट करे और डिटेक्ट करके न सिर्फ मीडिया के सामने बल्कि हमारे सामने और पूरे पाकिस्तान के आवाम के, कराची आवाम के सामने लेकर आए कि ये हरकतें कौन कर